नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ अभी मानसी स्कॉट हैं जो एक बार फिर से लोगों की जिंदगी में नाच गाना मस्ती पॉप म्यूजिक सब कुछ लेके आ रही हैं। हाउ यू? I'm good, very, very good to talk to you. It's been a really lovely week since the release and the pre-release and the planning. बहुत मजा आ रहा है. तो कुछ बताइए। पॉप भी है, म्यूजिक भी है, पंजाबी भी है, एग्जैक्टली क्या है ये गाना? आपने exactly perfectly described किया because literally today's status that I posted was it's pop, it's hot, it's Punjabi, it's electric. So I'm half Sardarni. I've been singing Punjabi for a very long time. But पिछली album में Mikka Paji also came and sung with me. That's only an album for my YouTube channel. I didn't put it out anywhere else. जब भी लोग पंजाबी सुनते हैं, they want ढोल and they want that very typical sound. It's only the guys from say Canada that are bringing in that Punjabi English suave sophisticated kind of sound. So during lockdown I kind of came up with this song with this hook. I wrote it, I composed it, except the rap, which is Love or Trigger. And Gaurav Dasgupta, who's heading music for 9X, heard it. He literally met me after lockdown. That song, that Kithe Chali. So I said, wow, that's recall. And everybody who heard it said, just keep it the way it is. Of course, Twisted Bass started me off on it. He's the one who's kind of produced the whole track. But just people seeing you as an artist and saying, ye theek hai, Punjabi hook ho sakta hai, Angrezi ho sakta hai, and nobody in the country is doing it. There's no female rapper in the country. That's thanks to Gaurav that I've attempted rap also. It's such a niche new space, and I'm so happy that I have a team like this that's backing it. Even you, like here, interviewing me. It's amazing to have this kind of support, and I just hope I'm setting a new path for a lot of the girls who do Punjabi in this country and a lot of the women who do English music, because India it's the only country that accepts all languages. That's the most amazing thing about our country. So I really hope that pure pop space is gone. I was joking with someone, Sujit will hate this. I know he's quietly listening to it. But all the artists, they ask me questions about independent music in India. Sorry to say, but every artist sounds the same. But the sara that melancholy, कोई गा रहा है गिटार के साथ एक ही तरीके से गा रहा है. Nobody's coming out with power. Nobody's coming out with an artist that knows their music. Everybody's trying to copy everyone else. So I literally thought I would have had to change the whole song, put in layers and voices, dhol dalna, pehna si, a lot of other things. But everybody from Spotlight that's showcasing this on YouTube, from 9X and all the channels, everybody just heard this and said, go with this. And that's been like a blessing. I've been like waiting for it for many years. बिल्कुल आप कहें हमने वैसे हिंदी बॉम्बे में लोग ज्यादातर बम्बैया बोलते हैं तो हिंदी का लिहाज है ही नहीं और पापा आर्मी में थे तो हमने हिंदी लखनवी और उर्दू और हिंदुस्तानी के साथ सीखी है. तो बहुत मजा आएगा आपसे हिंदी में वार्तालाप करके. That's really nice. But still मैं जब ये गाना देख रही थी और सुन रही थी, मुझे अचानक से ना शिरोन प्रभाकर की याद आ गई. तो एकदम से 90s के वो दौर याद आया जब नया काइंड ऑफ म्यूजिक जो है वो देश में इंट्रोड्यूस किया गया था. तो क्या कोई इंस्पिरेशन थी या फिर ये कहीं कोई एक अनोइंगली चीजें हो गई बड़ी खूबसूरती से? एक्चुअली बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है. अभी पर्टिनेंट को हिंदी में क्या कहें वो मुझे नहीं पता है. मैं कह रही थी लोगों से कि आई थिंक पिछली बारी किसी ने इतना फेथ डाला हुआ किसी आर्टिस्ट में, लिटरली अलीशा चनौर इनके जमाने में श्वेता शेट्टी हुआ करती थी. आई थिंक मुझे लग रहा है जब मैं सुन रही हूँ, बिकॉज जो मैंने पहले गाने लिखे हैं, इफ आई एम प्रमोटिंग इट, मतलब 10 बार ही सुन लिया तो मेरे से गाना सुना नहीं जाता है. बट ये एक गाना है, आज जैकलिन फर्नांडिस ने पोस्ट किया है, बिकॉज एग्जैक्टली द सेम थिंग शी सेड अबाउट द सॉन्ग, कि बिल्कुल नया साउंड है. एंड आई थिंक अब मौका नहीं मिला है लोगों को एक नया साउंड डालने के लिए, बिकॉज एक तो या तो बॉलीवुड रहा है जहां पे लोगों को एक ही तरीके से गाना है, या तो वही हाई पिच फीमेल सिंगिंग, वही ऑल द मेन सिंगिंग लव सॉन्ग्स. सोनम महापात्रा, जो मैंने बहुत बार उनका नाम लिया है, बहुत करीब मेरी दोस्त है, शी इज द ओनली वन हूज बीन फाइटिंग कि लड़कियों को एक जगह मिलनी चाहिए, फीमेल आर्टिस्ट को एक जगह मिलनी चाहिए. सो आई थिंक ऐसे गाने, ऐसे पाथ ब्रेकिंग गाने, न्यू साउंड के गाने बहुत हैं, लेकिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिला है. हम लोग डालते हैं अपने छोटे बहुत यूट्यूब चैनल्स पे या अपने खुद के सोशल मीडिया चैनल्स पे, बट यहाँ पे एक चैनल है, एक स्पॉटलैंप है, एक 9X है, जिन्हें विश्वास है आप पे और आपके साउंड पे.
तो अगर ऐसा सपोर्ट मिलेगा आर्टिस्ट को इस देश में, तो आई थिंक बहुत सारे नए साउंड, नए कलाकार, आई मीन ट्विस्टेड बेस जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, ये साउंड इंटरनेशनल है, इट्स व्हाट वी वुड कॉल इंटरनेशनल साउंड, एंड बस लोगों को मौका चाहिए। एंड आई थिंक अगर करेक्ट टीम सपोर्ट मिले लोगों को, पीआर के जरिए, मैनेजमेंट के जरिए, और आर्टिस्ट सिर्फ अगर क्रिएटिव कॉन्सेप्ट से कॉन्सेंट्रेट करे एंड थोड़ा एफर्ट डाले, एक और दूसरी चीज है, विच इज व्हाई आई थिंक आपको वीडियो भी पसंद आ रहा है और गाना भी, बिकॉज अगर आप गाना गा रहे हैं तो आवाज में दम होना चाहिए, और अगर आप वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं या स्टेज पे गा रहे हैं, देन यू हैव टू लुक द पार्ट, मतलब कपड़े सही होने चाहिए, मेकअप सही होना चाहिए। सो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि स्टेज की जगह यू हैव टू अर्न दैट स्पेस, और अगर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते अच्छी तरीके से, देन देयर इज नो पॉइंट। सो आई डाइग्रेस अ लिटिल। आई थिंक ये लॉकडाउन जो हुआ है हमारे साथ, और जो टाइम लोगों को मिला है अपने आप के साथ स्पेंड करने का, पीपल हैव स्टॉप्ड टू थिंक लाइक, अगर मैं गाना गा रही हूँ, मैंने 180 शोज किए थे इंस्टाग्राम लाइव पे अपने खुद के, बिकॉज आई हैड ओल्ड एज होम्स, आई हैड सुसाइड हेल्पलाइंस, रोज मुझे मैसेज आते थे, प्लीज आप गाओ, यू आर कीपिंग अस हैप्पी। सो आई जस्ट sang every day, I would get ready, मतलब रोज हेयर मेकअप पूरा डाल के, वैसे ही ये हुक वहीं से शुरू हुआ है। एक दिन गाना सुना मैंने, ये रिदम एंड बेस अरेंजमेंट, आई वाज पुटिंग लिपस्टिक एंड आई वाज लाइक, किथे चली कुड़ी है, एंड वहां से गाना शुरू हुआ। सो आई थिंक पहली बारी 20 सालों में, आई वाज सिंगिंग आई थिंक आफ्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सो 2001, 20 सालों में पहली बार somebody is looking at me and saying I can see you and I see the artist you are, और वो थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, then to put your best foot forward and to present yourself well. So I think the only thing lacking for Indian artists is a good team supporting everything else, and thanks to you now interviewing me, thanks to Spotland, 9X, and I think besides me and the music, even as an artist presentation, we are setting a new pathway totally. That's beautiful. I hope जैसा आपको सपोर्ट मिलता है और आपकी खुद की दिल से अंदर से जो आवाजें निकल रही है, वैसे ही सब लोगों को उसका फायदा भी हो और इंस्पिरेशन भी मिले। एट द सेम टाइम मैं आपका पढ़ रही थी, तब आपका मुझे मालूम पड़ा कि नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर, सो वहां से फिर आपका इंजीनियरिंग, फिर आपका सिंगिंग एंड राइटिंग एंड So मैं एक लौती बेटी हूँ। My father is no more. He was a lieutenant general in the army. My माँ भी फ्रंट लाइन पे है। She has a 300 bed hospital. She's the director of Pune Hospital. दोनों आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज की थी, सुपर अचीवर्स। उस जमाने में कहा जाता था डिस्क्स, डबल इनकम सिंगल किड्स। तो पहले से ही प्लान किया था कि एक बच्चा होगा, लड़की पैदा हुई। एंड पापा ने शुरुआत में ही वाज अ हॉर्स राइडर, नेशनल लेवल ड्रमर, थ्रू कॉलेज सिंगर, मतलब लड़की को सब कुछ कराना है। सो मेरा दिन शुरू होता था 4:30 बजे, सुबह उठती थी, हॉर्स राइडिंग के लिए जाती थी, उसके बाद बास्केटबॉल, उसके बाद स्कूल इन चेन्नई, उसके बाद कराटे, उसके बाद बैडमिंटन, उसके बाद वक्त नहीं मिलता था मुझे, और बीच बीच में गाना हो जाता था। बट उस जमाने में ना रियलिटी शोज थे, ना टीवी था। अगर आप आशा भोसले के सुपुत्र थे तो आपको एक इन रोड मिलता था बॉलीवुड में, तो ऐसा कुछ इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस के लिए कोई रोड मैप नहीं था। So I said, चलो इंजीनियरिंग करेंगे, because पापा said, please don't become a doctor, I am too emotional. So मैंने कहा ठीक है। So सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टॉप किया, स्कॉलरशिप मिली अमेरिका जाने के लिए। तब और पापा, I think I was lucky to have the only father in the world जो इतने क्रेजी थे। अंटार्कटिका चले गए एक्सपीडिशन के लिए, माउंट कार्मेट क्लाइंब किया, 70 वॉर सर्जन रहे हैं। तो जब ये सीट मिली मुझे अमेरिका में, तो मुझे फोन किया, अब मैं इस पे रोक लगाने वाला हूँ, तुम्हें जाके गाने चाहिए, मैं सपोर्ट करूंगा, प्लीज अमेरिका मत जाओ, अगर सारे अच्छे लोग देश को छोड़ के चले गए तो इस देश का क्या होगा। It's so unusual because I don't think किसी को भी I don't know any other person who has a parent like this supporting you in the arts. हालांकि काफी एमेच्योर थिएटर करती आई थी मैं, और मतलब हर एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीतती आई थी, बट कभी सीखा नहीं म्यूजिक। सो मैंने कहा ठीक है, आई लीव इट। डैड वाज पोस्टेड टू INHS अश्विनी इन बॉम्बे। मैंने कहा मैं छोड़ के आती हूँ, अब मैं मास कॉम करूंगी जेवियर्स में, और फिल्में बनानी थी, डायरेक्टर बनना था, ये सब करना था। बट I realized I'm better in front of the camera than behind. And then I got lucky. मतलब
मेरी फिल्में कभी मत देखना जो कॉलेज में बनाई थी, नॉट एट ऑल. बट फिर मुलाकात हुई थ्रू माय बेस्ट फ्रेंड विद हेमंत त्रिवेदी, विद नीता लुल्ला. और उस जमाने में बॉलीवुड का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था फैशन में. सो अगर आप मॉडलिंग कर सकते थे और अगर आप उसके ऊपर गाना गा सकते थे, यू वर फर्स्ट फेस एंड शो स्टॉपर. सो बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत सीखा, एवरीथिंग अबाउट मेकअप, हेयर, परफॉर्मिंग. और उस जमाने में लिपसिंग या ऐसी कुछ चीजें होती नहीं थी. यू हैड टू गो सिंग, you know, and you were only as good as you sounded. So जगह जगह मिला. I performed in Las Vegas. I had my own concerts in New York. फिर लगा कि खुद के concerts करने चाहिए. और धीरे धीरे you know portfolio बढ़ता गया. And now I performed at Priyanka Chopra and Nick Jonas's wedding. That was like you know like it was just amazing. So हमेशा लाइव शोज पे इंटरेस्ट रहा है. नॉट दैट आई डोंट वांट टू डू बॉलीवुड. जो फिल्में आई हैं, जॉन के साथ की है, झूठा ही सही, आई डिड भाग जॉनी, वेब सीरीज है अभी ऑनलाइन विद श्रेयस तलपड़े, देयर्स आई एंटर्ड कॉमेडी विद बेबी कमना. सो जो आता है मैं करती हूँ, लाइक बट आई डोंट चेज इट बिकॉज आई थिंक somebody needs to be the voice of independent music and stage shows, and someone needs to you know tell all the Indian singers कि ना घर के पजामा कुर्ता पहन के आके स्टेज पे आके गा नहीं सकते. You got to present yourself well. So that's always been my zone, and live music will always remain my first love. और मैं कहती हूँ अपने बच्चे को भी समझाती हूँ, I am a single mom, he's 14, कि तुम्हें कुछ पोस्ट करना है ऑनलाइन करो. Post what you want to be remembered for. Don't worry about the likes. Even if it's 500 as opposed to 5 million, it's enough. But post and make products that you want to be remembered for. You know, what creates immortality for you. कि कोई सुने तो कहे यार इसने काम किया, कितना अच्छा किया. That's beautiful. मेरा इनफैक्ट एक सवाल ये भी था, निक जोनस एंड प्रियंका चोपड़ा, थोड़ा सा उस बारे में बताइए, बिकॉज ये आई थिंक बहुत मजा आया. हमारे देश की एक बहुत ऐसी रहस्यमयी कपल लगती है मुझको, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है. इसीलिए मैंने सिर्फ फोटोग्राफ पोस्ट किए हैं सोशल मीडिया पर, वीडियो नहीं किया है. मैं भेजती हूँ व्हाट्सएप पे लोगों को, क्योंकि प्रियंका और मैं बचपन से जानते एक दूसरे को. उनके पिताजी और मेरे माँ बाप एफएमसी कॉलेज में सेम बैच के थे. एंड निक जोनस ज्यादा लोग जानते नहीं है कि कितनी बड़ी हस्ती है, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग हिज करियर. वो एक नंबर 1 शो पे थे, किंगडम करके. एंड एक टाइम पे बिलबोर्ड पे बिफोर द जोनस ब्रदर्स रीयूनाइटेड उनके 4 हिट सिंगल्स थे. तो मैं जानती थी उन्हें, और मैं जानती थी एक वेडिंग प्लानर को. और मैंने एक्चुअली पहली बार जिंदगी में फोन करके बोला था कि जब वो 20 नाम को ना बोलेंगी ना, 21वां नाम मेरा डालना. आई नो आई विल बी डूइंग दिस वेडिंग. एंड इसलिए कहूंगी कि प्रियंका इज सो ब्यूटीफुल एंड सो ओपन हार्टेड. शादी के दिन भी हमारे बीच में गाना है, आई विल ऑलवेज लव यू बाय विटनी ह्यूस्टन. हम बच्चे थे, आई थिंक मैं 15 की थी या वो 11-12 की थी. ऑडियंस में थी हमारे मॉम एंड डैड के बैच की 25th एनिवर्सरी थी. सो एवरीबॉडी यूनाइटेड इन पूना. और मैंने ये गाना गाया और पापा ड्रम्स बजा रहे थे. और वो सबको बताती, हमारे टीचर्स को, मैगजीन्स को, शादी के दिन पे माइक पर, मानसी रविंद्रनाथ, that was my maiden name, is the reason I've become a singer. ये खुल के कहती हैं. I mean, she was that beautiful. But the best thing was that इतने शोज किए हैं. आप क्रिकेटर्स ले लें, एक्टर्स ले लें, कोई सिंगर आता है उठ के चले जाते हैं. सिर्फ रतन टाटा, ये ऐसे लोग पूरा रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं शो में. प्रियंका ने एक रूल बनाया था, nobody will leave the dance floor when Manasi is singing. Nobody does that, you know. इतना मजा है. Like my bandmates were like, this is amazing, this show. हमको 90 मिनट का शो करना था. 4 घंटे बाद you know जोधपुर में राजा की रिक्वेस्ट है, प्लीज गाना बंद करो, because it's really. So we had people from Game of Thrones, we had people from Kingdom, we had Superwoman, we had people who wrote songs for Maroon 5. सबके सब हिले नहीं. And सबके सब मेरे मैनेजर्स को आके पूछे थे, is she really Indian? Is she really Indian? तो it's amazing that we have this. We can actually give the West a run for their money, but हम लोग को जगह नहीं मिलती है, you know. We don't have an outlet, and for the first time, and I'm saying this again and again, 9XM and Spotland, they're giving us a roadmap, you know. So I'm praying that more and more singers follow suit. I'm praying that, you know, thanks to Jacqueline's post today and more friends who post, we get more presence online. But I think really the first step is you guys, is the press. With the love that you're showing the song, कि आप लोग please ऐसे, you know, और बढ़ाएं. And I really want to do a show for the press. Sujit and Parveen and all know this.
I said पहला शो जो टाइम मिलेगा ना, because I think you guys besides the doctors have been on the front line every single day. So एक कॉन्सर्ट हमारी तरफ से आपके लिए जरूर होगा. Oh, how sweet! This is a time when really music is healing everybody and good. आप इतना अच्छा सोच रहे हैं. आने वाले दिनों में और क्या करने के मूड में हैं आप? मतलब मैं कॉन्सर्ट में आऊँ, उसके अलावा आप क्या करना चाहती हैं मेरे लिए? काफी चीजें लाइन अप है. लकीली वर्चुअल कॉन्सर्ट्स तो हो ही रहे हैं, एंड आई स्टार्टेड कंपोजिंग म्यूजिक फॉर एड फिल्म्स. I've done a couple for Arsenal with the Nippon Steel, for Mahindra. Voiceovers में वापस I've taken a step. You just hear the Pink Foundry ads now. Music ही है. Actually इसके बाद रिलीजेस से स्किप के साथ एक अंग्रेजी गाना है कॉन्स्टलेशंस, एंड अनीश गेरा के साथ 2-3 गाने. बट अभी पंजाबी का चस्का मुझे गौरव दास गुप्ता ने जो दे दिया है ना, सो पुरानी वो खेल होती थी ना, अकड़ बकड़ बम्बे, वो उसमें पूरा गाना लिखा है. So I'm just trying to think of who I want to produce it with, hopefully Twisted Bass. So I think ये मौका मिला है हम लोगों को. We have the time to create a lot more music, and I definitely want to. मेरे को किसी को lectures नहीं देने, मेरे को किसी के साथ fight नहीं करनी. I just want people to dance. That's from naturally, that's been my aim. So all the songs I want to create, I want them to be fun, I want them to be dance oriented, and if it's Punjabi, I'm hoping I still have 9XM and Spotland releasing them. चलिए, बढ़िया, बेहतरीन. आपके सपने सच होते जाएं, लोग आपकी आवाज सुन के डांस भी करते जाएं और एंजॉय भी करते जाएं, और जल्दी ही मुलाकात हो ऐसे इंटरव्यू के दौरान. Thank you. शुक्रिया. Thank you, Runa. Bye. Thank you.